Good afternoon, dear students. I hope that all of you may be fine. Today, our topic is new, that is, voice change to what you call active voice and passive voice. I hope that you will enjoy this. It is very easy. But first of all, before starting the active voice and passive voice, please watch the videos of the tennis because tennis is compulsory here. Without tennis, you can't do anything here. Please, before watching this lecture, I hope that you will watch my videos of the tennis, about the tennis, which I have already uploaded in all the playlists. Number one, for English for all. Also, I have uploaded that in the JK SSRB and probably also in Kashmir University. First of all, you have to watch that. Then you have to watch this one. Then it will be helpful for you. Once again, before starting, I say those who are new and they have not subscribed till this time, they have to subscribe this channel here. And they have to watch from beginning to end. And they have to share this channel with their other relatives, friends, colleagues. Here you have to remember that there are separate playlists for English for all. There in English for all there is discussed everything, and also separate playlist for JK SSRB all posts, and also separate playlist for JK Bose 10th and 12th class. Also separate playlist for Kashmir University graduation students second sem, and also I have discussed here important literature of English literature. I hope that you will enjoy. Okay, now we will start our topic. But this is in the syllabus. It is necessary for everybody, but it is in the syllabus of JKSSRB 8, syllabus number 8. You can see yourself, active voice and passive voice. This is junior assistant syllabus of JKSSRB, and the same is of the account assistant. There is only some difference that there is also the tennis, which I have already completed. And you know that according to this syllabus, we have completed tennis, we have completed models, we have completed phrases, we have completed clause, and we have to now today complete active voice and passive voice according to this syllabus. Yes. Now we will start our topic. It is known to you that I consult so many grammars for your help. I see that which portion will be good for your help. I select that one. And all the grammars which I use here, which I consult, are very good. They will be helpful for you. But it is not necessary for you to buy them because I select the important portion from them. Voice change. You have to remember, first of all, remember what is voice. What is voice? Voice is the form of the verb which indicates whether the subject does the work or something has been done to it. यानी कि जो वॉइस होती है वो क्या हमें दिखा रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट. उसका भी एक लेक्चर है, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, वो भी आप पहले वॉच करेंगे. तो यानी कि यहाँ इसका कहने का मतलब वॉइस वो होती है जहाँ हमें दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या सब्जेक्ट हैं, या समथिंग हैज़ बीन डन टू इट, या और किसी से ये काम हो गई है. ऑब्जेक्ट यानी कि जिसको हम कहते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वॉइसेस. आज तक आपने पढ़ा था 2 काइंड्स, मगर आज आपको यहाँ इस ग्रामर से मिलेगी 3 काइंड्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो नई नई होनी चाहिए. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कैसिव पैसिव वॉइस. अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं. एक्टिव वॉइस
1 second. Active voice when the subject of a sentence is the doer or the actor, यानी कि जो आपको मैंने पहले भी कहा है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। यानी कि ऐसा कहने का मतलब ये, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब वही होगा, काम करने वाला वही पहले होगा। द वर्ब इज़ इन एक्टिव वॉइस, उस वक्त हम कहेंगे कि वर्ब एक्टिव वॉइस में की फॉर्म में है। इट इज़ सो बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ एक्टिव, इसको एक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है। सब्जेक्ट आपको मैंने बार बार कहा है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। नाउ आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, आपको समझ में आएगा यहाँ, यानी कि पहले यहाँ आई यही सब्जेक्ट है, वर्क ऑब्जेक्ट है, या ही डज दिस वर्क, या ही डिड दिस वर्क एटसेट्रा, ये तो एक्टिव है। अब अगर पैसिव हम देखेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, जब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ने कौन सी काम की, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होती है, काम इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस होता है। द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस, इट इज बिकॉज द सब्जेक्ट इज इन पैसिव। मिसाल के आपको समझ में आएगा, दिस वर्क इज डन बाई मी, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये काम किसने की, काम तो की है किसने। दिस वर्क वॉज डन बाई हिम या हिम, आपको अब याद रखना है क्योंकि आप थोड़ा एक्चुअली मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि इसकी डेफिनेशन, वहाँ आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको उन्हीं को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है या पैसिव से एक्टिव, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ इसने एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया है। जो ये मनिका है ये सब्जेक्ट है, ओपनर जो वर्ब है, द डोर ये ऑब्जेक्ट है। अब मतलब इससे कहने का मतलब ये है, अगर एक्टिव होगा तो पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट ओपनर, उसके बाद होगा ये, उसके बाद होगा वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव वहाँ पहले ऑब्जेक्ट ही होगा, यानी कि द डोर, फिर होगा वर्ब वाज ओपनर, फिर होगा सब्जेक्ट। यानी कि आपको याद रखना है कि एक्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है और पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट होता है। मुझे लग रहा है ये आपको याद रहेगा। अब इसने यहाँ भी ये फार्मूला लिखे हैं, सब्जेक्ट और एजेंट प्लस बी तो मतलब हेल्प वर्ब के फार्मूले जो होते हैं। और आपको याद रखना है यहाँ हम हर हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जिसका नाम है, और कभी कभी कोई प्रपोर्शन होगा और ऑब्जेक्ट। ये इसने यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी तो हमारी बिगनिंग है। हाँ, अब तो इसने कुछ रूल्स बताए हैं यहाँ। क्या, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव। जो मैंने आपको पहले कहा, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहाँ सब्जेक्ट लाना है, जहाँ सब्जेक्ट होगा वहाँ ऑब्जेक्ट लाना है। यानी कि एक्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट होता है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव जनरली प्लेस्ड बाय द प्रोपोर्शन बाई। यानी कि ज़्यादातर हम प्रोपोर्शन बाई यहाँ इस्तेमाल करते हैं, हर हमेशा नहीं, ये याद रखना है, हर हमेशा नहीं, ज़्यादातर पैसिव में। द मेन वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको याद रखना है हर हमेशा कि पैसिव में हर हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म। एंड इट इज़ प्रोसीडेड बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इन द पैसिव वॉइस। फिर हमें देखनी होती है कौन सी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है, क्या करना है। उसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि इन शॉर्ट अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो वॉइस हैं, वॉइस के दो किस्म हैं। जो मेन है मैंने कहा कासिव, मगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जनरल में दो ही है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में आपको याद रखना है, व्हेन ए वर्ब फॉर्म शोज दैट द सब्जेक्ट हैज़ डन समथिंग एज एक्टिव वॉइस, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव में जहाँ आपको मैंने कहा व्हेन द वर्ब फॉर्म शोज दैट समथिंग हैज़ बीन डन, यानी किसी काम को किया गया है, तो इसको पैसिव कहते हैं। तो अब आपको याद रखना है, जो आपको मैंने पहले भी कहा है, कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। ए सेंटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू सब्जेक्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको मालूम है, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया था कि उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, या प्रेडिकेट भी मैंने वो कहा है। इसने यहाँ यही लिखा है,
माधवी ये सब्जेक्ट है, रोड ये वर्ब है, ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है। मैंने उस वक्त आपको कहा भी कि ऑब्जेक्ट दो तरीके भी हो सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मस्ट बी टर्न्ड इनटू सब्जेक्ट, यानी कि जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, फिर पहले हम ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। मिसाल के लिए ए लेटर वाज रिटन बाय माधवी, या हम ऐसे भी लिख सकेंगे माधवी रोट ए लेटर, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ठीक हैं। द बी फॉर्म मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस, बी फॉर्म जो होती हैं वो टेंस के मुताबिक हमें लिखनी है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें टेंस के मुताबिक लिखने हैं। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही हमें पढ़ना है, यहाँ वही इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, अब आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म हम वर्ब की यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि प्रोपोर्शन बाई हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, हर हमेशा नहीं, ज़्यादातर। यहाँ इसने मस्ट लिखा है मगर मस्ट नहीं है, हर हमेशा नहीं लिखते हैं। इसीलिए मैं डिफरेंट ग्रामर्स कंसल्ट कर रहा हूँ कि किसी ने किसी जगह ठीक लिखा हो और किसी ने किसी जगह गलत। ये क्या यहाँ कह रहा है मस्ट, मगर मस्ट नहीं है, कभी इस्तेमाल नहीं होते हैं। द सब्जेक्ट मस्ट बी मेड द ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ आप खुद ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट उठाओ। और अभी आपको नहीं आएंगे ये समझ, मगर जब हम कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त आपको समझ आएगी। तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट उठा के रखो, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। मुझे लग रहा है कि आपने उठाया होगा, और क्योंकि यहाँ उसकी आंसर्स भी हैं। मिसाल के लिए पद्मा सिंह से सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाई पद्मा। आप कहेंगे सर ये सॉन्ग कहाँ से लाया, अभी ये बाई कहाँ से लाया, ये पहले ये सॉन्ग क्यों लाया। तो वही हमें पढ़ने हैं, वही रूल्स हमें पढ़ने हैं। थोड़ा इस पर आप नज़र मारो। माई सिस्टर इज़ पेंटिंग ए पिक्चर, अब हमने यहाँ लिखा है ए पिक्चर इज़ बीइंग पेंटेड बाई माई सिस्टर। आपको याद रखना है कि मतलब मीनिंग तो ये सेम देनी चाहिए, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मतलब आप ये कुछ हैं, इन पर आप नज़र डालो, फिर हम देखेंगे। हाँ, आपको और एक चीज़ याद रखना है कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट अनस्टेटेड होता है, उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस उन्हीं की हो सकती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होगा। जिनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा वहाँ पैसिव वॉइस नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो चेंज कैसे लाएंगे हम। मगर कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पैसिव वॉइस तो दिया हुआ होता है, वो अनस्टेटेड होता है, वही आप यहाँ ये कह रहा है। यानी कि इन सम सेंटेंसेस the object of the verb is omitted because the attention is not paid to the fact who does the action but the action itself. In such cases the agent of the action is either well-known person or an unidentified. It is therefore not necessary for us to mention the agent of the action, यानी कि वहाँ हम agent of action को mention नहीं कर रहे हैं। The passive form is commonly used only when we want to lay emphasis on the activity not the agent, क्योंकि वहाँ हमें पैसिव में जोर देना होता है किस पर, काम पर, एजेंट पर नहीं, करने वाला कोई कौन है उस पर नहीं। मिसाल के आपको यहाँ से समझ आएगा एग्जाम्पल से मेरे कहने का मतलब क्या है। द थीफ आर अरेस्टेड, यानी कि चोर को अरेस्ट किया गया है। यहाँ ये हमें नहीं दिखाया है किन्होंने किया है। बात यहाँ सिट्रस देने की बात ये है कि ये काम किए गए हैं, चोर को अरेस्ट किया गया है। ये तो सीधी सी बात है, कौन करता है चोर का अरेस्ट, वो पुलिस करता है भाई, द पुलिस। हम तो ये नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ सिट्रस देना है काम पर, या कौन सी काम की गई है। द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्टेड, ये तो सीधी सी बात है भाई BBC। मेरे कहने का वनस अगेन यही मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा, मगर वहाँ अंडरस्टूड होता है। इसी तरह है द विंडो वॉज ब्रोकन, ये तो सीधी सी बात है किसी इंसान ने ब्रोकन की होगी, कि जानवर तो नहीं कर सकेंगे। द प्लेन वॉज हाईजेक्ड यस्टरडे, ये सीधी सी बात है कोई ग्रुप ने कोई किया होगा, या किसी मैंने किया होगा किसी आदमी ने। तो यानी कि यहाँ आपको याद रखना है कि कभी कभी हम डायरेक्ट यानी कि जो काम हमारी होती है उसी पर ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस देते हैं, तो सब्जेक्ट वहाँ हम ओमिट करते हैं।
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला ऊपर वाला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सम टाइम्स ए पैसिव स्ट्रक्चर ऑफन कॉमन एंड नीटर देन द एक्टिव वन, यानी कभी कभी हमें पैसिव से ही पता चल रहा है एक्टिव से। मिसाल के लिए द सन हैज़ बीन पिक्चराइज्ड ब्यूटीफुली, यानी कि ये तो सीधी सी बात है, कौन करता है, सन को कौन पिक्चराइज कर रहा है, यानी कि फिर हम वहाँ डायरेक्टर नहीं कहते हैं, ये मतलब ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ये पैसे में ही अच्छा लग रहा है एक्टिव से। मिसाल के लिए इसी तरह माई एक्सपेंडिचर वाज कट डाउन, ये तो सीधी सी बात है, आप तो बच्चे हैं, आपका एक्सपेंडिचर कौन काम करेगा, मैं तो आपका टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे एक्सपेंडिचर के साथ क्या है, आपका बाप। आप ये कह सकेंगे माई फादर कट डाउन माई एक्सपेंडिचर, मगर ज़रूरी नहीं है, ये अंडरस्टूड है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको पैसिव ही अच्छा होता है, ये ज़रूरी नहीं है हम वहाँ एक्टिव में लिखेंगे। हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब्स टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि जब मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले आपको याद रखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं या जो ट्रांजिटिव सेंटेंस होते हैं इन्हीं का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि जिनमें ऑब्जेक्ट होगा वहीं होगा। और आप कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब मैंने आपको कहा है एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थे और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थे। अब आप कहेंगे सर अब हमें कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लाना है, वही बात है, वही मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। आप दोनों में कोई भी ला सकेंगे, जो आप चाहेंगे वो दोनों ठीक है। इसीलिए हम इन सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकेंगे। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज समटाइम्स फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको पहले भी कहा थे। इन सच केसेस द सेंटेंस में बी हैव टू पैसिव फॉर्म्स, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। द मैनेजर ग्रांटेड मी द परमिशन, आप ऐसे भी यानी कि लिख सकेंगे द परमिशन वॉज ग्रांटेड टू मी बाय द मैनेजर, या यानी कि वहाँ परमिशन एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरा है आई वॉज ग्रांटेड परमिशन बाय द मैनेजर। इसी तरह यहाँ मतलब 5 एग्जाम्पल्स है, आप खुद भी देख सकेंगे। द प्रिंसिपल इशूड मी द कंडक्ट सर्टिफिकेट, यहाँ 2 है, कंडक्ट सर्टिफिकेट और आप ऐसे कह सकेंगे द कंडक्ट सर्टिफिकेट वॉज इशूड टू मी बाय द प्रिंसिपल, या आप ऐसे भी कह सकेंगे आई वॉज इशूड द कंडक्ट सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब आप खुद ही ये जो एग्जाम्पल्स और कुछ हैं इनका स्क्रीनशॉट आप उठाएंगे और फिर आप रिपीट करेंगे, आप देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेहरबानी करके लिए मेरे कमेंट बॉक्स पर आप डालो, कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा या मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर से। अब पैसिव वॉइस को आपको याद रखना है कि आपको मालूम है कुछ कंपाउंड प्रिपोजिशंस होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, हम इनको निकाल नहीं सकते हैं। यही इसका कहने का मतलब ये है, जब वो एक्टिव में या पैसिव में चेंज हम करेंगे तो प्रिपोजिशंस उसके साथ रखने होते हैं। सर्टेन वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रिपोजिशंस, यानी कि वो इनके साथ ही होते हैं, वो प्रिपोजिशंस वर्ब्स के साथ, सो इनको हमें उनके साथ ही रखना है। सो प्रिपोजिशन आफ्टर द वर्ब मस्ट बी रिटेन्ड इन द पैसिव, यानी कि जब हम इसको पैसिव में चेंज करें तो वहाँ भी हमें वो रखना है। दे लाफ्ड एट द पुअर बेगर, मिसाल के लिए अब हमें यहाँ पहले द पुअर बेगर लिखना है, वाज लाफ्ड एट, यानी कि एट हमें यहाँ इसके लाफ्ड के साथ लिखना है बाय देम। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। अब ये है इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मैंने इसलिए वहाँ जल्दी जल्दी किए क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे कहाँ पहुँचना है, कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब मैं वहाँ पहुँच ही गया है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको मतलब पूरा तरह से समझ में आएगा, मगर फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसको देखने से पहले आपको टेनिस के तमाम वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, उससे फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ वॉइस चार्ट, ये मैंने वॉइस चार्ट बनाया है, मैंने खुद बनाया है, किसी बुक से नहीं है। जहाँ बुक से होता हूँ वहाँ मैं कह रहा हूँ, और जो भी बुक से मैं आपको पढ़ाता हूँ वहाँ मैं डायरेक्टली बुक का स्क्रीन ये फ़ोटो उठा रहा हूँ। मैं वहाँ कोई मतलब अपने वर्ड्स में इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैंने खुद बनाया है, ये किसी बुक से नहीं है। इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट उठाएंगे, ये आपको काम आएगा। हाँ, take the screenshot of this because the whole
लेक्चर विल रिवॉल्व अराउंड इट। जो भी हमने पढ़ना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, अगर आपको ये आपकी आंखों में रहेगा तो 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस विद इन सेकंड्स आप करेंगे वह एक्सरसाइज। और आपको मालूम है ये मेरा आदत है, जब मैं खुद भी पढ़ता था और आज आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मैं चार्ट बना रहा था, क्योंकि उससे इंसान को आसान होता है एग्ज़ाम के दिन भी, और मतलब याद भी रहता है। आपने देखा होगा कि टेनिस में भी मैंने आपको चार्ट से पढ़ाया है, मॉडल्स में भी मैंने आपको चार्ट से पढ़ाया है, और आज यहाँ से भी आपको मैं चार्ट से ही पढ़ाऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, देखो क्या है, मैंने फिर भी आपसे कहा है कि टेनिस कंपलसरी है। अब मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि जो ज़्यादा चेंज आती हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, वो टेनिस चेंज ही आती हैं। आप कैसे टेनिस से जाएंगे, कौन सी टेनिस से जाएगी, वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैंने कहा है पहले ही कि 12 टेंसेज है, वो तो हमने पढ़ा है, यानी कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अब आप कहेंगे सर आपने ये क्या किया है, ये क्या बनाया है। मैंने यहाँ से टेंसेस का चार्ट बनाया है, और यहाँ से ये टेंसेस है यहाँ से। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने लिखा है ऑल पीसी। ये पीसी क्या है, ये पीसी है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं उसके बारे में आपको कहूँगा इसके क्यों मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, और मैंने यहाँ लिखा है एक्टिव वॉइस और यहाँ लिखा है पैसिव वॉइस। और आप देखते हो कि जैसे मैंने आपको टेनिस में बताया था वैसे ही वही चार्ट मैंने यहाँ मॉडिफाई किया है, क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए। आपने वहाँ देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वहाँ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है। और हेल्पिंग ग्रुप डू या डज इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी मैंने वही लिखा है। और कभी कभी हम SRES इस्तेमाल करते हैं, तो वही मैंने लिखा है, वहाँ से ही मैंने ये उठाया है। ये वही चार्ट मैंने मतलब थोड़ा एडिटिंग उसी में की है, क्योंकि मैंने इसलिए किया ऐसा, मैंने सोचा कि आपको याद रहेगा। हाँ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग ग्रुप डू डज, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग ग्रुप डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, आपको मालूम है फर्स्ट फॉर्म विल शैल। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म हैज़ हैव। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म हैड। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म। ये तो आपको मालूम है। इसी तरह आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, फोर्थ फॉर्म इज़ एम आर, और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वी है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस को मैंने टच नहीं किया है, वो क्यों नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, अब यहाँ से मैंने क्या किया है, देखो क्या करना है, ये यहाँ ही आपको याद रखना है। बस ये बहुत इजी है, अगर आपको ये चार्ट याद आता है आप समझो कि आपने 100% कंप्लीट किया है। ये यहाँ से वहाँ आपको एक्टिव में होगा, अगर वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म डू या डज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ लिखना है इज़ एम आर। पैसिव में आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है इज़ एम आर। प्लीज़ यहाँ मेरी तरफ सुनो, एक बात आपको याद रखना, आप देखते भी हो, पैसिव में हर हमेशा आपको याद रखना, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, हर हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, हर हमेशा, हर किसी के साथ। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं वो पैसिव में इस्तेमाल होती है। मिसाल यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये आपको याद रखना है, आज ही बिठा के रखना है दिमाग में कि पैसिव के साथ हर हमेशा थर्ड फॉर्म। अब मैंने कहा है अगर वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यानी कि कोई सेंटेंस डू या डज वाला या एस या एस वाला, तो उसको आपको इस वक्त हेल्पिंग वर्ब करना है इस्तेमाल इज़ एम आर। बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स इस वक्त आपको प्रेजेंट, यानी कि वो कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वो भी ठीक है, मगर हेल्पिंग वर्ब आपका ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म नहीं लिखनी है। इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। मैंने सोचा आप तो फिर लिखेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल फॉर्म नहीं होती है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती है। फॉर्म तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है हर हमेशा पैसिव में। इसीलिए मैंने यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा है, क्योंकि खाली प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। मगर आप ये भी कह सकेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट आपको ये याद रखना है खाली हेल्पिंग वर्ब्स।
इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको मालूम है, वहाँ फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म होते वो डिड होता है। तो वो हमें जिस तरह मैंने अभी भी कहा है, वहाँ पे आएंगे प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, मगर खालिस मैं बार बार कह रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है वाज विया, यानी कि आपको याद रखना है कि डिड के बदले हमें वाज विया लिखना है। और थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको मालूम है कि फ्यूचर के साथ फर्स्ट फॉर्म और विल और शैल, और आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ थर्ड फॉर्म तो मैंने आपको कहा हमेशा विल बी शैल बी, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस में, यानी कि यहाँ बहुत आसान है। आप ऐसे भी याद रख सकेंगे कि जो इंडेफिनिट वाले होते हैं वो कंटिन्यूस में चेंज होते हैं, मगर फॉर्म थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती हैं। इंडेफिनिट वाले जो हैं वो कंटिन्यूस में चेंज होते हैं, मगर जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। समझ में आया? मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो थर्ड फॉर्म ही रहेंगी, इसको सर कोई हमें चीचा नहीं करना है। और हैज़ हैव वही रहेगा, मगर प्लस आपको बीन करना है, हैज़ हैव प्लस बीन आपको इस्तेमाल करना है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। हैज़ हैव प्लस बीन। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस हैड, यानी कि वहाँ होगा पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होगा और हैड होगा। जब आप पैसिव इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे हैड बीन, यानी कि हैड तो अपना ही है, आपको एडिशनल लिखना है बीन। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। ये उतना तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है अगर आप ये टेबल याद रखेंगे। मैं इसीलिए बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जो ये टेबल है इस पर आप नज़र मारो, इसको अपनी आँखों में रखो, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। 1 सेकंड। हाँ, इसी तरह अब आपको रखना है फ्यूचर परफेक्ट, वहाँ में विल हैव शैल हैव होता है और थर्ड फॉर्म। यहाँ कुछ नहीं करना है, विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ये रहेगी। अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो परफेक्ट वाले होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, खालिस हमें बीन इस्तेमाल करना है और थर्ड फॉर्म भी वही है। यानी कि परफेक्ट्स में जो 3 परफेक्ट्स हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, वहाँ हमें एक ही चेंज लानी है पैसिव में, यानी कि बीन ऐड करना है। यानी मैंने इसलिए किया प्लस, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या करना है, खाली हमें बीन इस्तेमाल और ऐड करना है। समझ आ रहा है? आप प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको मालूम है इज एम और हेल्पिंग वर्ब होता है, और जब उसका पैसिव होगा, पैसिव में आपको याद रखना है कि इज एम आर वही रहेगा, खालिस आपको बीइंग ऐड करना है, खालिस आपको बीइंग ऐड करना है, बीइंग। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। और थर्ड फॉर्म तो हमेशा थर्ड फॉर्म रहेंगी। पास्ट कंटिन्यूस के साथ आपको मालूम है वाज और विया होता है, तो वहाँ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हमेशा, और वाज और विया प्लस बीइंग इस्तेमाल होता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में आपको ऐड करना है बीइंग, बस बाकी वही लिखना है। ये तो आसान है, बहुत आसान है। और अब आप कहेंगे सर ये फ्यूचर कंटिन्यूस, और आपने यहाँ कुछ आल पीसी लिखा है। आल पीसी का माने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उनका पैसिव नहीं होता है, वो एक्टिव में ही खालिस रहते हैं। जब आप उनकी फॉर्म्स देखेंगे आप कहेंगे कि अगर वहाँ करेक्ट इनकरेक्ट में कभी होता है, आपको वहाँ देखना है कि क्या करना है। आप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, जब मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा आप 30 मिनट्स हो गए हैं, अब ये काफ़ी, मैं उस वक्त फिर से ये चार्ट रिपीट करूँगा आपके लिए, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप दैट you will see yourself this chart and you will take it a screenshot, because I once again say that it has been made by me by myself. Once again about the channel that it is free of cost, whose name is Salim Salus Academy,
and there are separate playlists. That is number 1 English for all, ये एक प्लेलिस्ट है। JKSSRB सेकंड प्लेलिस्ट है। वहाँ जो भी सिलेबस, जो भी आज तक एडवर्टीजमेंट किए गए हैं पोस्ट्स, उनका सिलेबस वहाँ डिस्कस किया जाएगा, यानी कि उनके टॉपिक्स वहाँ डिस्कस किए जाएंगे। और JK बोस 10th और 12th क्लास के, मैंने कहा कि 10th और 12th क्लास का टू द पॉइंट होगा, वेरी ब्रीफ होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी के BG यानी कि ग्रेजुएशन की क्लासेस फर्स्ट से बराबर होगी 6 से तक, और इम्पॉर्टेंट लिटरेचर वहाँ डिस्कस होगा। मगर आपको करना क्या है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब यहाँ करेंगे, और आपको वॉच करना है वीडियोस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और आपको शेयर करना है, बिकॉज शेयर मीन्स केयर। जिनको भी आप केयर करते हो उनके साथ आप ये वीडियोस शेयर करेंगे। थैंक्स, गुड आफ्टरनून, बाय, टू मच थैंक्स।